یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ شیخ یاسین سے خبریں سنیے۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا تھا آج آخری دن۔ سینئر بی جے پی لیڈر نریندر مودی نے وارانسی حلقے سے کیے اپنے کاغذات داخل۔ سری نگر پارلیمانی حلقے میں کل ڈالے گئے ووٹوں کی شرح جمہوریت کے تئیں عوامی اعتماد کی عکاس، چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے۔ جموں کشمیر میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے سلسلے میں 11 FIR درج، 29 شکایات پر تحقیقات شروع، اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لیا محکمہ داخلہ کے کام کاج کا جائزہ۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لوک سبھا انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آج آخری دن تھا۔ اس مرحلے میں 7 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے کی 57 لوک سبھا سیٹوں پر انتخابات ہوں گے۔ 7ویں مرحلے میں اتر پردیش اور پنجاب کی 13، مغربی بنگال کی 9، بہار کی 8، اڑیسہ کی 6، ہماچل پردیش کی 4، جھارکھنڈ کی 3 اور مرکز کے زیر انتظام چندی گڑھ کی 1 سیٹ کے لیے پولنگ ہوگی۔ اس آخری مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل کی جائے گی۔ امیدوار 17 مئی تک اپنے کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے ووٹنگ 1 جون کو ہوگی۔ دریاستہ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج وارانسی حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ اس موقع پر چندرا بابو نائیڈو، ایکناتھ شنڈے، جتن رام مانجھی، سنجے نشاد، رام داس اٹھاولے جیسے اتحاد کے شراکت داروں کے قائدین کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا اور پارٹی کے سینئر قائدین راجناتھ سنگھ اور ہردیپ سنگھ پوری بھی موجود تھے۔ اس نشست پر کانگریس کے امیدوار اجے رائے، جو اپوزیشن کے INDIA اتحاد کے مشترکہ امیدوار ہیں، نریندر مودی کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 2019 کے انتخابات میں نریندر مودی نے سماجوادی پارٹی کی شالنی یادو کو 4.79 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی تھی۔ پارلیمانی انتخابات کے چوتھے مرحلے کے تحت کل ہوئی پولنگ کی شرح تقریباً 63% درج کی گئی۔ اس مرحلے میں جموں کشمیر کی 1 نشست سمیت کل 96 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ جموں کشمیر کی سری نگر پارلیمانی نشست پر اچھی خاصی پولنگ درج کی گئی۔ سری نگر، گاندربل، بڑگام، پلوامہ اور شوپیاں اضلاع پر مشتمل اس پارلیمانی نشست میں چناؤ کے احسن انعقاد کے لیے 2135 پولنگ مراکز قائم کیے گئے تھے۔ چناؤ کے دوران رائے دہندگان کو جوش و خروش کے ساتھ لمبی قطاروں میں پولنگ مراکز کے باہر دیکھا گیا، جن میں بزرگ، خواتین اور پہلی بار ووٹ ڈالنے والے نوجوان شامل تھے، جس سے جموں کشمیر میں ووٹروں کی جمہوریت کے تئیں اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ صوبائی انتظامیہ نے پولنگ کے احسن انعقاد کے لیے تمام تر انتظامات کیے تھے، جبکہ رائے دہندگان خصوصاً بزرگ شہریوں اور خواتین کے لیے پولنگ مراکز پر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کیے گئے تھے۔ پولنگ کی تفصیلات دیتے ہوئے جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں ووٹنگ کا تناسب صرف 14.43% تھا، جبکہ اس بار ووٹنگ کی شرح 38% رہی۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ نہ تو بائیکاٹ ہوا اور نہ ہی کسی پولنگ اسٹیشن پر صفر ووٹنگ درج کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ شرح میں ہوئے زبردست اضافے کا سہرا گزشتہ 4-5 برسوں میں سیکیورٹی اور امن و امان کے بہتر ماحول کو جاتا ہے۔ انہوں نے چناؤ میں حصہ لینے والے 24 امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے متحرک ہونے، ترقیاتی کمشنروں اور CEO آفس کی جانب سے سویپ سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کو چناؤ سے متعلق آگاہی اور پولنگ کے احسن انعقاد کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پی کے پولے نے پولنگ کی اس بڑی شرح کو رائے دہندگان کے بیلٹ کے ذریعے پائیدار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پختہ عزم سے تعبیر کیا۔
दरियास्तान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में पोलिंग की रिकॉर्ड शरह फीसद पर अवाम और तमाम शराकतदारों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि लोग बड़ी तादाद में श्रीनगर के पार्लिमानी हल्के में वोट डालने के लिए बाहर आए और जमहूरियत और आईन पर अपने एतमाद का इयादा किया। अपने एक ट्वीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पोलिंग के आजादाना, मुनसिफाना, पुरअमन और हमवार इनकाद के लिए तैनात किए गए एहलकारों की मेहनत को सराहा। उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरियत के सबसे बड़े त्योहार में वोटिंग फीसद में जबरदस्त इजाफा देखकर उन्हें मसरत हुई। बारामुल्ला पार्लिमानी नशिस्त जहां रवा महीने की 20 तारीख को वोट डाले जा रहे हैं, में आज से घरेलू वोटिंग का अमल शुरू हुआ जो 16 मई तक जारी रहेगा। ECI और मकामी इंतजामिया की तरफ से होम वोटिंग के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। इन इक़दामात के तहत बुजुर्ग शहरी, जिस्मानी तौर खास अफराद घर में ही वोट डालने के अहल हो गए हैं। सरहदी जिला कुपवाड़ा, जो बारामुल्ला पार्लिमानी हल्के का हिस्सा है, के 6 असेंबली हलकों से ताल्लुक रखने वाले 402 रजिस्टर्ड बुजुर्ग और जिस्मानी तौर खास राय दहिंदगान भी अपनी नौयत की पहली होम वोटिंग सहूलियत से मुस्तफीद हो रहे हैं। जिले में 40 टीमों को इस काम के लिए मामूर किया गया है, जिनमें पोलिंग अमले के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर और हिफाजती अमले के एहलकार शामिल हैं, जो अहल वोटरों से ECI के रहनुमा खतूत के तहत वोटिंग के अमल को यकीनी बना रहे हैं। राय दहिंदगान ने अपनी दहलीज पर उन्हें इस जमहूरी अमल में शामिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सराहना की है। इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा शकील उर रहमान ने आज चुनाव में अवाम की भारी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए स्वीप इक़दामात के तहत एक मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया। मार्च का एहतमाम महकमा तालीम और पुलिस ने मुश्तरका तौर किया। मार्च में नौजवानों, रजाकारों, पुलिस एहलकारों और जिला इंतजामिया के एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने जमहूरी ताने-बाने की तश्कील में फाल शिरकत की अहमियत पर जोर दिया। भारतीय चुनाव कमीशन के मुताबिक कमीशन को मौसूल हुई शिकायत में से तकरीबन 90% से ज्यादा शिकायत का इजाला किया गया। आज एक बयान में कमीशन ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों और उम्मीदवारों की जानिब से 425 बड़ी शिकायत दर्ज की गई हैं, जिनमें से 400 केसों का निपटारा किया गया। ECI ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से 170 शिकायत दर्ज कराई गई, जबकि बीजेपी की तरफ से 95 और 160 शिकायत दीगर पार्टियों की तरफ से दर्ज की गई। कमीशन ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की एक और दूसरे के खिलाफ चंद शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी हुकाम ने पोलिंग से मुतल्लिक खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में 11 FIR दर्ज की हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले के मुताबिक 16 मार्च से अब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की 234 शिकायत मौसूल हुई हैं। शिकायत का नोटिस लेते हुए कमीशन की तरफ से 11 FIR दर्ज की गई, जबकि 80 शिकायत पर नोटिस जारी किए गए और 29 शिकायत पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज टेटवाल और टंगडार में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। इस मौके पर पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अमन व इस्तेकाम की बहाली और तामीर व तरक्की के लिए पार्टी के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि अवाम की हर हाल में खिदमत करना उनकी पार्टी का मंशूर रहा है। कन्वेंशन से पार्टी के सीनियर लीडरान शरीफुद्दीन शारिक, खालिद नजीब सोहरवर्दी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। उड़ी और संग्रामा में मुनक्कदा अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है और नौजवान पौध नशीली अद्वियात के शिकार हो रहे हैं, जो एक लम्हा फिक्र गया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उन उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं जो हकीकी तौर पर तामीर व तरक्की और अमन के ख्वाह हैं।
खबरों का ये बुलेटिन आकाशवाणी श्रीनगर से नशर किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज महकमा दाखिला के कामकाज का जायजा लेने के लिए मुनक्कदा एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों SRE के तहत अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों, जेल खाना जात के कामकाज, फोरेंसिक डिवीजन को मुस्तहकम करने के अलावा मनशियात के खिलाफ कार्रवाई, नीज 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होने वाले नए क्रिमिनल कवानीन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ पुरतशद्दुद झड़पों के नतीजे में 4 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हलाक होने वालों में एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। वहां हजारों मुजाहिरीन जुम्मे से सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं, जो टैक्स फ्री बिजली और गंदम के आटे पर सब्सिडी का मुतालबा कर रहे हैं। अवामी मुजाहिरे उस वक्त पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गए जब मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। सरकार ने दफा 144 नाफिज करके स्कूलों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारोबार को बंद कर दिया। नीज इलाके में मोबाइल मवासलात को भी मुअत्तल किया। तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से पाकिस्तान की मईशत 2 साल से जायद अरसे से मायूसी का शिकार है। इधर जम्मू जिले में कल शाम LOC के करीब एक गांव से एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त कराची के जाहिर खान के बतौर हुई है। दूसरी जानिब कठुआ जिले में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब कम से कम 5 अफराद की मुश्तबा नकलो हरकत के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई है। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मिशन डायरेक्टर यशा मुदगल ने आज लाल मंडी श्रीनगर में HADP के तहत कुछ प्रोजेक्टों की अमल आवरी का जायजा लेने के लिए मुतल्लिका अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग से खिताब करते हुए यशा मुदगल ने HADP के तहत मुख्तलिफ मंसूबों की अहमियत को उजागर किया। HADP को तब्दीली के मिशन के तौर पर उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर भर में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की मजमूई तरक्की को फरोग देना है। इससे पहले नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने प्रोग्राम के मुख्तलिफ मंसूबों के निफाज के हवाले से तफसीली प्रेजेंटेशन दी। बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला और सीनियर BJP लीडर सुशील कुमार मोदी का कल नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। BJP के सीनियर रहनुमाओं ने सुशील मोदी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी सुशील कुमार मोदी के फौत होने पर गहरे सदमे का इजहार किया है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि जहानी ने अपने आप को आवाम के फलाही कामों के लिए वक्फ किया था, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। भारत ने पहली बार वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 में अपना पवेलियन कायम किया है, जो फिलहाल हॉलैंड के रोटरडम में जारी है। पवेलियन का इफ्तिताह काबिल तजदीद तवानाई के सेक्रेटरी भूपिंदर S बल्ला ने किया। आम आदमी पार्टी ने आज बदनवानी के मसले पर BJP को निशाना बनाते हुए मुहिम शुरू की। पार्टी लीडर और दिल्ली के वजीर गोपाल राय ने BJP पर अपोजिशन लीडरों को निशाना बनाने के लिए मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि BJP उन लीडरों को क्लीन चिट देती है जो बदअनवानी के इल्जाम का सामना करते हुए मरकज में हुक्मरान पार्टी में शामिल होते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस ने BJP हुकूमत पर नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया है। नई दिल्ली में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए दिल्ली कांग्रेस के रहनुमा अनिल भारद्वाज ने इल्जाम लगाया कि बाज कारोबारी ग्रुपों ने माशी तरक्की पर इजारादारी कायम कर रखी है, जिससे नौजवानों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।